Assalamualaikum, beta. In this video lecture, I'll be busy with the peptic ulcer disease, right? And this is a very important lecture of abdomen, part of the general surgery lectures, and this is going to be the super interesting. I have a detailed lectures of peptic ulcer disease and its management in the gastroenterology series of medicine. But here I'll bring all the surgical aspects of the peptic ulcer disease on literally on your fingertips. Just trust the process, be with me. I'm going to give a big cracker right in this particular topic, peptic ulcer disease. You people know that it occurs in the stomach, it occurs in the duodenum. The most common site of the peptic ulcer disease is the anterior wall of the first part of the duodenum. That's good news. Come on. Okay. This is the most common site we know now. Anterior wall of the first portion of the duodenum. And the least common site is the lesser curvature. ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द लेजर कर्वेचर ऑफ द स्टमक. इनके अलावा कहाँ ओरिजिनेट हो सकता है पेप्टिक अल्सर? इनके अलावा कहाँ मिल सकता है पेप्टिक अल्सर हमें? मैकल डायवर्टिकुलम में. Mecal diverticulum is obviously not present in every individual, but if present in somebody, so the gastric ulcer, the peptic ulcer can arise from the mecal diverticulum. And you guys remember what is the site of origin of the mecal diverticulum? Near the ileocecal region, right? उसके अलावा पेप्टिक अल्सर बेटा गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन से अराइज हो सकता है, ठीक है, and so many other places, but the two which we have to keep in our mind, the most common site is the first portion of the duodenum anterior wall, and the less common site is the lesser curvature of the stomach, right, especially the lower part of the lesser curvature of the stomach. So I hope you are clear with the location. On the basis of the site of the stomach, okay, where exactly the ulcer is arising from, we have type of ulcers. If it is arising from the lesser curvature, especially the lower part of the lesser curvature, this is the mistake. Yeah, if it is arising from the lower part of the lesser curvature, it is said to be type 1 ulcer. And if it is arising from the body of the stomach, if it is arising from the body of the stomach, it is type 2 ulcer. And if it is arising from the pre-pyloric part near the pyloric antrum, it is type 3. Okay? And if it is arising high on the lesser curvature above, it is type 4. And if it is NSAID induced ulcer, particularly it is called type 5 ulcer. ठीक है, थोड़ा सा रिकैप करें मेरे साथ. अगर अल्सर मौजूद है लोअर पार्ट ऑफ द लेजर कर्वेचर में, it is type 1. But if it is present in the body of the stomach, it is type 2. And if it is present in the pre-pyloric antrum, it is type 3. Present in higher above upper part of the lesser curvature, it is type 4. And if it is NSAID induced ulcer, it is type 5. दोबारा recap करो. Lower part of the lesser curvature, type 1. And occurring in the body is type 2. Occurring in the pre-pyloric antrum, it is type 3. And high on the lesser curvature, it is type 4. If it is NSAID induced ulcer, it is type 5. Good one, right? Now, what is the investigation of choice for the peptic ulcer disease? So far, you know the location of the ulcer, most common and less common. Okay? Let's suppose if you have ulcer in your stomach, what's going to be that one best gold standard investigation is the endoscopy. Endoscopy, gastroduodenoscopy. Okay? And now I'll be focusing on the treatment part of the peptic ulcer disease, medical management, and then surgical management, right? So actually you might think आपकी book के अंदर I'm actually leaving a couple of things. The reason is that I have delivered that particular thing in the medicine part. So if you are listening to the surgery lectures after listening to the medicine lectures, this is going to be the true combination. तो आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मेडिसिन और सर्जरी साथ चला सकते हैं. आप एक टॉपिक आप उठाएं, उसको मेडिसिन से करें, उसके बाद सर्जरी से करें. दिस इज़ द क्लासिक कॉम्बिनेशन, राइट? सो एक्चुअली जो आपकी सर्जरी के बुक के अंदर जो पार्ट मेडिसिन का है वो ऑलरेडी वहाँ कवर हो चुका है. सो आई हैव टू ऑब्वियसली आई स्किप दैट पार्ट, राइट? एंड आई हैव टू फोकस ऑन द सर्जरी पार्ट. So that's why you might find something in your book
which I am not mentioning in the lecture, is only because of the reason that is, yeah, that I have delivered already in the medicine, and that part can be better covered in the medicine part. ठीक है, this is the only reason. The medical management and the surgical management, बेटा सही है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ. We actually have to focus on the surgical part. Medical part is investigation, everything. I have literally series of lectures on that particular thing. You can better go there. You are going to have a mastery in that particular portion. Here I am there for you to masterize the surgical aspects, starting with the treatment of the peptic ulcer disease, starting with the lifestyle modification. What is the lifestyle modification of the peptic ulcer disease or gastritis? Do not consume the spicy foods. Do not consume late night heavy meals. Do not consume heavy fat meals. Reduce the weight, reduce the BMI, exercise, elevate the head of the bed. What else? Smoking cessation, alcohol cessation. तो मेडिकल मैनेजमेंट बेटा कुछ इस तरीके से होती है कि एक्चुअली इफ़ अ पेशेंट कम्स टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर साहब मुझे मैदे में बहुत दर्द होता है, खून की उल्टियाँ आती हैं, और दिस इज़ द टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज़. तो आपने क्या करना है कि उसको हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए काउंसलिंग करने के साथ साथ, लाइफ स्टाइल के लिए काउंसलिंग करने के साथ साथ उसको 8 हफ्ते का पीपीआई का ट्रायल देना होता है. ठीक है, 8 वीक्स पीपीआई ट्रायल आप देते हो, और अगर 8 वीक्स पीपीआई का ट्रायल देने के बाद आपका पेशेंट रिकवर करता है तो दैट्स गुड. अगर नहीं करता तो आपने 2 अदर टेस्ट कराने होते हैं. एक रहती है एंडोस्कोपी, एक रहती है, हाँ जी, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग. This will give you everything about the presence of the peptic ulcer disease in your stomach, and this will tell you everything about the presence of the any esophageal problem due to the GERD. If there is a presence of the GERD or the, yeah, okay. So 8 वीक पीपीआई का ट्रायल देते हो, एंडोस्कोपी मंगवाते हो, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करते हो. तो आपने GERD को भी रूल आउट कर लिया इसकी मदद से, और अल्सर को भी रूल आउट कर लिया इसकी मदद से. ठीक है, आपने एंडोस्कोपी की, और एंडोस्कोपी पे आपको पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, लेज़र कर्वेचर पे या डोडेनम के अंदर आपको अल्सर मिलता है. ठीक है, और साथ में एंडोस्कोपी पे अल्सर मिलता है, और आपने इसके साथ साथ एच पाइलोरी के लिए भी टेस्ट मंगवाया. एच पाइलोरी के लिए आपने यूरिया टेस्ट करवा लिया या फिकल स्टूल एंटीजन करवा लिया, और उस पर आपको एच पाइलोरी भी मिल गया. ठीक है, मैं एक्चुअली केस डेवलप कर रहा हूँ. सो आपने क्या किया बेटा, पीपीआई का ट्रायल दिया पेशेंट को, लेकिन पेशेंट इंप्रूव नहीं हुआ. डॉक्टर साहब वही मैदे में दर्द रहता है, बहुत सीवियर, और साथ साथ खून की उल्टियाँ भी आती हैं, वजन भी गिरता जा रहा है. तो फिर जाहिर सी बात है इस केस में पीपीआई काम नहीं करेंगी. आपने एंडोस्कोपी मंगवाई टू सी इफ देयर इज एनी अल्सर प्रेजेंट. आपने 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करवाई टू सी इफ देयर इज एनी GERD और द इसोफेजियल अल्सर और एनी इफ इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स द पैराट इसोफेगस. ठीक है, तो एंडोस्कोपी पे आपको अल्सर मिला. ठीक है, टू रूल आउट द कॉज ऑफ द अल्सर. कैल्सर का कॉज क्या है, एनसेड है, एच पाइलोरी है, अल्कोहल कंजम्पशन है. तो आपने एच पाइलोरी का टेस्ट मंगवाया, और एच पाइलोरी अगर आपको पॉजिटिव मिलता है, साथ में एंडोस्कोपी पे अल्सर मिलता है. सो दिस इज द टिपिकल पेप्टिक अल्सर डिजीज ड्यू टू एच पाइलोरी इन्फेक्शन. तो अब इस केस में क्या करेंगे, एच पाइलोरी को मेडिकली ट्रीट किया जाता है. एच पाइलोरी को मेडिकली ट्रीट करने के लिए हमारे पास रहती है एक ट्रिपल थेरापी, एक क्वाड्रुपल थेरापी. मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज आई हैव डिटेल्ड लेक्चर्स ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग इन मेडिसिन, बट आई वुड श्योरली मेंशन के 2 एंटीबायोटिक रखते हैं और एक पीपीआई डाली जाती है. इस तरीके से ट्रिपल रेजिमेंट बनता है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग. पीपीआई ट्रायल दोगे, पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा, एंडोस्कोपी मंगवाओ, गैस्ट्रोडोडोनोस्कोपी जिसको कहते हैं, और 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करवाओ. एंडोस्कोपी पे अल्सर मिल गया, स्टूल एंटीजन में एच पाइलोरी मिल गया. दिस इज द एच पाइलोरी इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज. ठीक करने के लिए एच पाइलोरी का रेजिमेंट चलता है ट्रिपल और क्वाड्रपल. ठीक है, ट्रिपल में चलो जल्दी से बता देता हूँ. एक पीपीआई डालते हो आप, एक इसमें आप क्लैरिथ्रोमाइसिन डालते हो, और एक एमॉक्सिसिलिन डालते हो, या फिर इसकी जगह पे आप मेट्रो भी डाल सकते हो. सही है, इस तरीके से. और यहाँ पे आप पीपीआई डालते हो, सही है, और मेट्रो डालते हो, और इसमें बिस्मुथ डालते हो, और इसमें आप टेट्रासाइक्लिन डालते हो. ठीक है, ये 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन रहता है.
अगर एच पायलोरी रेडिकेशन थेरेपी देने के बाद पेशेंट रिकवर नहीं करता, अल्सर मौजूद है, एच पायलोरी का ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट इंप्रूव नहीं हुआ, देन वी हैव टू गो टू द सर्जिकल मैनेजमेंट, which I am here for, and you guys too. Surgical management of the duodenal ulcer. Let me take you into the details of this particular portion. Right, beta. So the surgical management of the peptic ulcer disease, including the surgical management of gastric ulcer and the duodenal ulcer. So firstly, I'll be telling you about the gastric ulcer, and then I'll come to the duodenal ulcer. So for the gastric ulcer, what we do is beta, yeah, the surgical management for the gastric ulcer is the Billroth 1. Billroth 1 सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं बेटा, हम गैस्ट्रेक्टमी करते हैं एंड देन गैस्ट्रोडोडोनोस्टमी कर देते हैं. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है बेटा कि इफ दिस इज योर esophagus, this is your stomach, this is your laser curvature, loop of the intestine. Actually what we do is, if let's suppose this is the ulcer present in the wall of the stomach, and these are the acid producing cells, the parietal cells, which produce the acid, and this keeps on triggering this ulcer. So this is the problem. And what is the solution? The solution is to remove this big portion of the stomach, जिसमें हमारे parietal cells which are acid producing cells वो भी चले जाएंगे, साथ में अल्सर वाला पोर्शन भी कट हो जाएगा. तो removing this particular portion of the stomach is called gastrectomy, and this remaining end of the stomach is connected with this part of the duodenum, that is called the gastroduodenostomy. So we removed this part of the stomach, so we are only left with the esophagus and the only portion of the stomach. ठीक है जी, remaining of the stomach we have resected actually. So this upper part of the stomach is basically anastomosed with the duodenum. So this entire is your duodenum, right? This is your esophagus, and this is the anastomosis. This is the anastomosis between this remaining portion of the stomach and the duodenum. This is the remaining portion of stomach, ठीक है जी. तो इसमें हमने अल्सर भी रिजेक्ट कर लिया और बचा हुआ स्टमक नीचे एनास्टोमोस कर दिया. किसके साथ एनास्टोमोस कर दिया? डुओडेनम के साथ. एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? बिलरथ 1. कोई प्रॉब्लम? दिस इज ऑल अबाउट द गैस्ट्रिक अल्सर, nothing else, as easy as possible, not too complicated. Now let me take you to duodenal ulcer. This was for the gastric ulcer, ठीक है जी. अच्छा, for duodenal ulcer, let me take you over here, and there are 3 to 4 procedures for the duodenal ulcer. यहाँ पर बेटा गैस्ट्रिक अल्सर में हमने क्या किया? Billroth 1. And for duodenal ulcer, we have so many procedures to talk about, but at the very first is the Billroth 2, right? Now let me take you to Billroth 2, which is for duodenal ulcer. Well, we have so many other procedures to talk about when it comes to duodenal ulcer, but at very first it is the Billroth 2. I hope you are clear with this. Now I am taking you from gastric ulcers to the duodenal ulcers, right? The very first treatment of the duodenal ulcer is the Billroth 2. ठीक है, Billroth 2 में क्या करते हैं बच्चों कि this is your normal, healthy, good looking esophagus. This is your stomach, the laser curvature, the duodenum and the loop of the intestine, right? प्रॉब्लम कहाँ पर है? अल्सर कहाँ पर है? स्टमक के अंदर नहीं, अल्सर मौजूद है आपके
डोडेनम की एंटीरियर वॉल में, फर्स्ट पोर्शन ऑफ द डोडेनम की एंटीरियर वॉल में अल्सर मौजूद है। तो अब क्या करते हैं हम इस केस में, हम जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, जस्ट ट्रस्ट व्हाट आई एम सेइंग। देयर इज अ अल्सर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द डोडेनम। इसमें हम क्या करते हैं, गैस्ट्रेक्टमी कर देते हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग the ulcer is present in the duodenum, why the hell we are doing this gastrectomy? Because the acid production source is from here. These are the parietal cells which produce the acid, and this acid gets into your duodenum and keeps on triggering and damaging the ulcer, right? This is the ulcer in the duodenum. Here is the acid coming down from stomach into the duodenum and continuously damaging the ulcer, right? So we did the gastrectomy and we ended the source of the parietal cells. Once the gastrectomy is done, the source of the parietal cells will be ended और parietal cells खत्म हो जाएंगे, नहीं रहेंगे मजीद। parietal cells नहीं होंगे तो acid production नहीं होगी, acid production नहीं होगी तो अल्सर आपका मजीद ख़राब नहीं होगा। Let me explain you how I am going to follow it up. इसके बाद बेटा क्या करेंगे, now just look at this. This is the esophagus, the remaining portion of the stomach, right? And this is the duodenum where this ulcer is present. इसको हम कर देंगे स्टम्प, इसको कर देंगे हम स्टम्प, इसको ऊपर से क्लोज कर देंगे। इन केस ऑफ बिलरथ 1, इन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रेक्टमी करके अल्सर निकाल के पैराइटल सेल्स खत्म हो गए थे। अपर पार्ट ऑफ द स्टमक को हमने नीचे डोडेनम के साथ एनास्टमोस कर दिया था, अपर पार्ट ऑफ स्टमक को हमने डोडेनम के साथ एनास्टमोस कर दिया था। यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे डोडेनम के साथ एनास्टमोस नहीं करेंगे, डोडेनम को उल्टा स्टम्प कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। जो डोडेनम के बाद आपका जेजुनम आता है, इस जेजुनम के बाद ऑब्वियसली इलियम एंड एवरीथिंग, ये जेजुनम है, ठीक है। इसमें से लूप बना के इसको हम स्टमक में ओपन कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। So this is the upper part of the stomach, remaining part of the stomach after the gastrectomy, and this is the duodenal stump, and what is this called? Gastrojejunectomy, ठीक है। यहाँ पर क्या किया था, गैस्ट्रोडुओडेनोस्टमी, एनास्टोमोसिस क्या थी, गैस्ट्रोडुओडेनोस्टमी, राइट। यहाँ पर क्या किया हमने, गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी। अब यहाँ पे स्टम्प हो गया, एसिड आएगा स्टमक से डायरेक्ट जेजुनम में, एंड दिस वे नो वे टू डैमेज योर अल्सर एनी मोर एंड नो सोर्स, एसिड का सोर्स खत्म कर दिया, अल्सर विल इट सेल्फ रिग्रेस नाउ, ठीक है। सो दिस इज वॉट वी डू इन केस ऑफ बिलरथ 2. So I hope you are clear with this. What we did in case of gastric ulcer, resected the portion of the stomach जिसमें अल्सर भी चला गया, parietal cells भी चले गए, and then this left out upper portion of the stomach, we connected it with the duodenum, and this anastomosis is called gastroduodenostomy. The upper part of the stomach is now connected with this duodenum. This is called gastroduodenostomy. This was very good for the gastric ulcer, but we then started the duodenal ulcers. In case of the duodenal ulcer, what did we do is started with the Billroth 2 operation. There are so many methods for the duodenal ulcer, only one for the gastric ulcer. And the one for the gastric ulcer is the Billroth 1, but for duodenal ulcer, we can talk about the Billroth 2 and so many other procedures. What we did in Billroth 2, the starting procedure is same as of the gastric ulcer, that is the Billroth 1. हमने सबसे पहले गैस्ट्रेक्टमी की, ये पोर्शन उड़ा दिया, यहाँ पे भी ये पोर्शन उड़ा दिया। बट अनलाइक बिलरथ 1 हमने गैस्ट्रोडुओडेनोस्टमी नहीं की, हमने क्या किया, गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी कर दिया। अपर पार्ट ऑफ स्टमक को कनेक्ट कर दिया जेजुनम के साथ और स्टम्प बना दिया डुओडेनम का, डुओडेनल स्टम्प एंड द गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। दिस इज बिलरथ 2 फॉर डुओडेनल अल्सर। व्हाट एल्स वी कैन डू? What else we can do for the duodenal ulcer? Truncal vagotomy. Truncal vagotomy. What the hell is this? Actually, what happens, beta? There are actually vagal nerves, which are actually your parasympathetic nerves, जो कि स्टमक को सिग्नल देती हैं और एसिड प्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं, एसिड प्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं।
ना सिर्फ ये वेगल नर्व्स स्टमक प्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं बल्कि पाइलोरिक स्फिंक्टर को ओपन करती हैं, जिससे पाइलोरस ओपन होता है, खाना नीचे आता है। और हाँ जी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी बढ़ाती हैं। बट द मेन थिंग इज दैट द वेगल नर्व्स एक्चुअली signals the stomach to produce acid more and more. But alongside this particular function, vagus nerves, what do? Second thing is beta, it keeps the pylorus wide, but it is better to say कि ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करता है, मोटिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। सो बिफोर आई रियली टेल यू अबाउट द ट्रंकल वेगोटॉमी, you have to first understand what is the role of the vagal nerve and the parasympathetic part of the parasympathetic system. स्टमक को सिग्नल देता है, एसिड प्रोडक्शन बढ़ाता है, ठीक है, और दूसरा गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है, इंक्रीज करता है। सो व्हाट वी डू बेटा इन केस ऑफ ट्रंकल वेगोटॉमी, वी कट द वेगस नर्व, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व को हम कट करते हैं। राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व को कट करने से क्या होता है, स्टमक को सिग्नल जाना बंद हो जाता है और एसिड प्रोडक्शन बंद हो जाती है। एंड आई थिंक दिस इज द सुप्रीम ट्रीटमेंट फॉर गेटिंग योर अल्सर बैक, राइट। अल्सर विल बी वेरी मच हैप्पी नाउ, राइट, बिकॉज वी कट इट ऑफ द वेगस नर्व, and due to cutting off the vagus nerve, the signals to the stomach are reduced, due to which the acid production is not there anymore, right? But when you are cutting the vagus nerves, जिसको क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रेसी कहते हैं, एसिड प्रोडक्शन तो बंद हो जाएगी, लेकिन इसको कट करने से गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक स्टेसिस होगी, पेट के अंदर खुराक रुकेगी, फ्लूइड रुकेगा, डाइजेस्टिव जूसेस रुकेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट मी टेक यू बैक ऑन दिस पेज, जस्ट अ सेकेंड। स्टार्टिंग विद द गैस्ट्रिक अल्सर, हाउ डिड वी प्रोसीड। गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर क्या किया था, बोलो, बिलरथ 1, बेहतरीन। स्टेप्स बताओ, गैस्ट्रेक्टमी करके गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी कर दिया था, बेहतरीन। देन वी केम टू डुओडेनल अल्सर। डुओडेनल अल्सर में व्हाट डिड वी डू, सबसे पहले बिलरथ 2, इसमें क्या किया था, गैस्ट्रेक्टमी करके गैस्ट्रोडुओडेनोस्टमी की थी, नहीं, गैस्ट्रेक्टमी करके गैस्ट्रोजिजोनोस्टमी की थी और डुओडेनम का स्टम्प बना दिया था, ठीक है, क्लोज कर दिया था उसको। दूसरा इसके लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है डुओडेनल अल्सर के लिए, दैट इज व्हाट, दैट इज ट्रंकल वेगोटॉमी। ट्रंकल वेगोटॉमी, व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन कटिंग ऑफ द वेगल सप्लाई ऑफ द स्टमक। ट्रंकल वेगोटॉमी से ये होता है कि जब दोनों राइट लेफ्ट आप वेगल ट्रंक कट कर देते हो तो पैरासिम्पैथेटिक इनपुट आप ख़त्म कर देते हो, ठीक है। ट्रंकल वेगोटॉमी यानी कि कटिंग ऑफ, चॉपिंग ऑफ व्हाट, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व जस्ट अबव द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। तो ये जब आप राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व कट कर देते हो तो इससे क्या होता है कि एसिड प्रोडक्शन तो आपकी ख़त्म हो जाती है, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द अल्सर। बट ये वेगल नर्व कट करने से गैस्ट्रिक स्टेसिस बढ़ जाती है, खुराक पेट में रुकने लगती है। बट दिस इज़ द प्रॉब्लम, राइट, दिस इज़ द प्रॉब्लम। एसिड प्रोडक्शन का काम होना इज़ अ गुड न्यूज़, स्टेसिस इज़ द प्रॉब्लम। अब इस स्टेसिस को कैसे डील करें। स्टेसिस को बेटा डील करने के 2 से 3 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि ट्रंकल वेगोटॉमी करें ही ना, उसकी जगह कोई और प्रोसीजर करें, जैसे कि सिलेक्टिव वेगोटॉमी। सिलेक्टिव वेगोटॉमी क्या है इसके बारे में मैं ऑब्वियसली बताऊंगा आपको। इसमें यह होगा कि गैस्ट्रिक स्टेसिस नहीं होगी, एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगी। उसके अलावा दूसरी चीज़ स्टेसिस से बचने के लिए आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, पाइलोरोप्लास्टी, पाइलोरोप्लास्टी। व्हाट एल्स वी कैन डू, गैस्ट्रोजिजोनोस्टमी, राइट। Truncal vagotomy is a really good option, reducing the acid production, but unfortunately there is a problem because you are cutting the right and left vagus nerve. So what is going to happen?
if you are cutting the right and left vagus nerve, gastric motility is reduced and gastric stasis is increased. That's very good. स्टेसिस अगर होगी तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए 3 ऑप्शन हमारे पास हैं कि ट्रंकल वेगोटॉमी आप करो ही ना, उसकी जगह सिलेक्टिव वेगोटॉमी कर लो, ठीक है। या अगर आपने ट्रंकल वेगोटॉमी कर ली है, स्टेसिस हो गई है, तो फिर ये 2 ऑप्शन हैं, पाइलोरोप्लास्टी एंड गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी। दिस इज द अल्टरनेटिव, दिस इज द अल्टरनेटिव ऑफ द ट्रंकल वेगोटॉमी। सिलेक्टिव वेगोटॉमी में क्या करते हैं, हम वेगल इनपुट को कट करते हैं जस्ट लाइक द ट्रंकल वेगोटॉमी, लेकिन ट्रंकल वेगोटॉमी में क्या होता है, पूरे जीआईटी का पैरासिम्पथेटिक इनपुट कम हो जाता है। ट्रंकल वेगोटॉमी जब आप करते हो पूरा ट्रंक काटते हो, जिसकी वजह से पूरे जीआईटी का पैरासिम्पथेटिक इनपुट कम हो जाता है। हाईली सिलेक्टिव वेगोटॉमी में जब आप वेगल इनपुट कट करते हो तो पर्टिकुलरली पैराइटल सेल्स का इनपुट कम करते हो, पूरे दोनों राइट लेफ्ट वेगस नर्व्स को नहीं कट करते। सिलेक्टिव वेगोटॉमी में सिर्फ हम पैराइटल सेल्स का वेगल इनपुट कट करते हैं, जिसकी वजह से पैराइटल सेल्स काम करना छोड़ जाते हैं, बाकी पूरा जीआईटी का पैरासिम्पथेटिक इनपुट बिल्कुल ठीक है। सो सिलेक्टिव वेगोटॉमी में हम क्या करते हैं, वेगल इनपुट कट करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसका कट करते हैं, पैराइटल सेल्स का। एसिड प्रोडक्शन हमारी हो जाएगी बिल्कुल ऑफ, ठीक है, और बाकी पूरा जीआईटी सही रहेगा, कोई स्टेसिस का मसला नहीं होगा क्योंकि सिर्फ आपने पैराइटल सेल्स को टारगेट किया है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव ऑफ द ट्रंकल वेगोटॉमी, हाईली सिलेक्टिव वेगोटॉमी। बट आपने अगर ट्रंकल वेगोटॉमी की है, सिलेक्टिव वेगोटॉमी नहीं की, तो फिर यू हैव दिस प्रॉब्लम कमिंग अप। तो उसको ट्रीट करने के लिए पाइलोरोप्लास्टी एंड गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी। पाइलोरोप्लास्टी ये होती है बेटा कि इफ दिस इज योर esophagus, the good looking stomach, then comes this duodenum, right? This is your pyloric antrum, right? यहाँ पे स्टेसिस होती है, फूड एक्चुअली पूरे स्टमक में यहाँ पे एंट्रम के लेवल पे रुकता है, स्टेसिस एक्चुअली होती ही यहीं पे है। तो ये पाइलोरिक एंट्रम है। तो हम क्या करते हैं, ये जो पाइलोरिक एंट्रम का रीजन है ना, इसके मसल्स को काट देते हैं, इसको वाइड ओपन कर देते हैं, पाइलोरोप्लास्टी करके इसके मसल्स को ओपन कर देते हैं ताकि इसमें, हाँ जी, स्टेसिस ना हो और खुराक नीचे चली जाए। तो पाइलोरोप्लास्टी इज़ लाइक इफ़ दिस इज़ द स्पेस और इसके अराउंड टाइट मसल्स हैं, तो पाइलोरोप्लास्टी करके इसके मसल्स की लेग्जिटी बढ़ाते हैं, इनको रिलीज़ करते हैं ताकि अंदर जो स्पेस है वो बड़ी हो जाए और आपकी खुराक यहाँ पे स्टेसिस ना हो और खुराक फूड जो है वो नीचे चला जाए। Any problem? I don't think there should be a problem. This is very clear. Pyloroplasty is cutting off the muscles of the pylorus, releasing it, increasing its laxity so that it has a wide open space and the food stasis does not occur anymore and the food passes all the way down into the stomach and into the duodenum, right? I think you are clear with the pyloroplasty. What about the gastrojejunostomy? Gastrojejunostomy is super interesting procedure. I am going to tell you about the gastrojejunostomy in the same picture. This is the duodenum and this is the jejunum, let's suppose, right? What we do is the gastrojejunostomy. Stomach को हम यहाँ से actually जेजुनम का लूप उठाते हैं, जेजुनम का लूप उठा के इसको हम स्टमक के साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये हम कर देते हैं रिजेक्शन एंड स्टम्प। इसको हम कर देते हैं रिजेक्ट एंड स्टम्प, इसको हम कर देते हैं रिजेक्शन एंड स्टम्प। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा कि इफ़ दिस इज़ योर इसोफेगस, दिस इज़ योर स्टमक एंड इसको हमने कर दिया दोनों एंड से स्टम्प। दिस इज़ योर डुओडेनम, दिस इज़ योर जेजुनम, राइट, और ये जेजुनल लूप आ गया। अब मुझे बताओ जहाँ पे गैस्ट्रिक स्टेसिस हो रही थी ये आ गया जेजुनल लूप, जिसकी वजह से गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी हो गई, ठीक है। अब मुझे बताओ जहाँ पर स्टेसिस हो रही थी पाइलोरस के अंदर, एंट्रम के अंदर, एक्चुअली एंट्रम इज द बैग, एंट्रम इज द पूल विच कलेक्ट्स एंड वेयर स्टेसिस एक्चुअली अकर, दैट इज द पाइलोरिक एंट्रम। आपने एंट्रम को रिमूव कर दिया, दोनों एंड जो है स्टम्प करके गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी कर दिया, फूड आएगा यहाँ जाएगा, ठीक है। So this is what we call the gastrojejunostomy. So actually we started with the treatment of the duodenal ulcer. We had Billroth 1 at very first. Billroth 1 में हमने क्या किया बेटा, गैस्ट्रिक रिजेक्शन कर दी, गैस्ट्रिक रिजेक्शन करके गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी कर दी। नो, डुओडेनम को तो स्टम्प कर दिया था,
फिर स्टमक को कहाँ ओपन किया था? जेजुनम का लूप बना के उसमें ओपन किया था। दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, राइट? गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी. But yeah, that was very good, I think. Yeah, then we came up with another procedure जिसके साथ एक प्रॉब्लम था, that is ट्रंकल वेगोटॉमी. ट्रंकल वेगोटॉमी में हम क्या करते हैं? राइट लेफ्ट वेगस नर्व को कट करते हैं, जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक इनपुट बंद हो जाता है एंड द एसिड प्रोडक्शन भी बंद हो जाती है. अल्सर बिकम्स वेरी मच हैप्पी. बट द प्रॉब्लम इज वेगल इनपुट बंद करने की वजह से स्टेसिस होती है. पायलोरिक एंट्रम में खुराक की पूलिंग होती है. तो फिर क्या करें? अल्टरनेटिव प्रोसीजर सिलेक्टिव वेगोटॉमी, जो सिर्फ पैराइटल सेल्स का वेगल इनपुट कट करेगा और पैराइटल सेल्स से एसिड प्रोडक्शन बंद हो जाएगी. या फिर अगर आपने ट्रंकल वेगोटॉमी कर दिया तो पाइलोरोप्लास्टी कर दो, वाइटली ओपनिंग द पाइलोरस सो यू कैन हैव बेटर स्पेस, अलाउइंग द फूड टू गेट इनटू द duodenum very quickly, no more stasis. Gastrojejunostomy, dumping all the food from the stomach into the jejunum and bypassing this particular portion. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रंकल वेगोटॉमी. आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सो फार. अब इसको ज़रा नोट से देख लेते हैं क्विकली. द डुओडेनल अल्सर बेटा, लेट मी टेल यू, इज मैनेज्ड बाय नंबर 1 बिलरथ 2 ऑपरेशन, जिसमें पहला स्टेप हमारा रहता है गैस्ट्रेक्टमी करते हो और उसके बाद डुओडेनल स्टम्प बनाते हो. स्टम्प बना के स्टमक को जेजुनम के साथ लगा देते हो. दैट इज़ द गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी. ठीक है, इस केस में मोर्टेलिटी 1 to 2% रहती है, इतनी ज़्यादा नहीं है. दूसरा मैंने बताया था बेटा ट्रंकल वेगोटॉमी के साथ ड्रेनेज. अब ट्रंकल वेगोटॉमी में क्या करते हैं? राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व को कट करते हैं अबव द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, जिससे एसिड सिक्रेशन तो कम हो जाती है, हमारा मसला हल हो जाता है. लेकिन वही बात है कि गैस्ट्रिक स्टेसिस का मसला होता है. तो अगर गैस्ट्रिक स्टेसिस हो रही है तो या फिर आप अल्टरनेटिव मेथड की तरफ जाओ, दैट इज़ हाईली सिलेक्टिव वेगोटॉमी. दिस विल कट ओनली द वेगल इनपुट ऑफ द पैराइटल मैस ओनली. इससे एसिड सिक्रेशन भी कम हो जाएगी, गैस्ट्रिक स्टेसिस के भी मसले मसाइल नहीं रहेंगे. सही है. और अगर आप अल्टरनेटिव में नहीं जा रहे तो ट्रीटमेंट पे आओ. एक ऑप्शन हमारे पास पाइलोरोप्लास्टी, पाइलोरस इज कट एंड रिलैक्स्ड एंड वाइडेंड इनटू द डुओडेनम. अनदर इज द गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी. ठीक है बच्चों, इस तरीके से. अच्छा, ट्रंकल वेगोटॉमी प्लस एंट्रेक्टमी एक और बेहतरीन सोल्यूशन है, विच इज़ नथिंग बट एक्चुअली दिस प्रोसीजर. इसमें हमने क्या किया था गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी में? गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी में हमने क्या किया था? ट्रंकल वेगोटॉमी की थी. ट्रंकल वेगोटॉमी के बाद गैस्ट्रिक स्टेसिस का प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने एंट्रम को रिमूव कर दिया था. अब एंट्रम को रिमूव करने के बाद हमने स्टमक को कहाँ लगा दिया था? जेजुनम में. सो वी कैन आइदर डू द गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, जिसको हम गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी को बिलरथ 2 भी कहते हैं, अब ये तो आपको आना चाहिए, या फिर हम गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी भी कर सकते हैं. ठीक है, आपने रिमूव एक्चुअली एंट्रम करना है, जो पूलिंग एरिया है जहाँ पे स्टेसिस होती है. सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दीज प्रोसीजर्स, बट नेवर माइंड बेटा, आई एम गोइंग टू रिकैप द सेम थिंग अगेन, जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस, जस्ट फॉर द मेमोरी पर्पस. एंड अगेन कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो वो भी क्विकली क्लियर हो जाएगी. देन आई विल बी टेकिंग यू टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज सर्जरी. ठीक है जी, क्विकली एक रिकेप देते हैं, अ वेरी क्विक रिकेप, बट दिस टाइम यू हैव टू हेल्प गाइस. व्हाट एक्चुअली वी डू बेटा, स्टार्टिंग विद द गैस्ट्रिक अल्सर. गैस्ट्रिक अल्सर में क्या करते हैं? प्रोसेस का नाम बोलो प्रोसीजर का. बिलरथ 1 करते हैं. सही है. बिलरथ 1 में क्या होता है बेटा कि अगर ये आपका इसोफेगस है, ये आपका स्टमक है, ये डुओडेनल लूप है, ये जेजुनम है. अब मैं क्विकली डायग्राम्स के थ्रू जाऊंगा. यू जस्ट हैव टू फॉलो मी, यू जस्ट हैव टू टेल द नेम, यू हैव टू टेल योर सेल्फ बिफोर आई राइट और बिफोर आई ड्रॉ. इसमें हम क्या करते हैं बेटा बिलरथ 1 में? या गैस्ट्रेक्टमी एंड गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी. लेट्स डू द गैस्ट्रेक्टमी फर्स्ट, रिमूविंग द बिग पोर्शन ऑफ द स्टमक एंड जेजुनम के साथ लगा देते हैं इसको. दिस इज द डुओडेनम, राइट, एंड दिस इज द remaining portion of the stomach, remaining stomach. This is called Billroth 1 procedure. I hope you are clear with this. Then I took you to the treatment of the duodenal ulcers. उसके लिए हमारे पास सबसे पहले था Billroth 2. Billroth 2 में क्या कर रहे थे? This is your good looking stomach with a good looking stomach, esophagus, stomach,
लूप ऑफ डॉर्डनम, लूप ऑफ जेजुनम, राइट। बिजनेस 2 में हमने क्या किया था, जल्दी बोलो, शाबाश। पहले तो गैस्ट्रेक्टमी कर ली, दैट इज़ द पोर्शन ऑफ स्टमक को रिमूव कर लिया। अब इसके बाद ये रहा आपका डॉर्डनम, पीछे जेजुनम, डॉर्डनम का बना दिया हमने स्टम्प, और जेजुनम से एक लिया हमने लूप, जेजुनम से एक लूप लेके इसको गैस्ट्रो जेजुनोस्टमी कर दी, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ गैस्ट्रोडेडनोस्टमी की थी, गैस्ट्रोडेडनोस्टमी की थी बिलरथ 1 के अंदर। बिलरथ 1 में कौन सी एनास्टोमोसिस की थी, गैस्ट्रोडेडनोस्टमी, और यहाँ पे क्या कर दी हमने, गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी इन केस ऑफ बिलरथ 2, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है मामला। इसके बाद हमने क्या किया था, हाँ जी बोलो, इसके बाद हमने की थी ट्रंकल वेगोटॉमी, ट्रंकल वेगोटॉमी। ट्रंकल वेगोटॉमी के का एक फ़ायदा था कि एसिड प्रोडक्शन बंद हो रही थी, ठीक है, लेकिन एक नुकसान था कि गैस्ट्रिक स्टेसिस हो रही थी। अब स्टेसिस से बचने का एक तरीका मैंने ये बताया कि आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर पे जाओ, एंड दैट अल्टरनेटिव प्रोसीजर इज़ द सिलेक्टिव, हाईली सिलेक्टिव वेगोटॉमी, ठीक है जी, हाईली सिलेक्टिव वेगोटॉमी। गुड गुड ग्रेट। अच्छा, उसके अलावा इस, या फिर अगर अल्टरनेटिव पे नहीं जा रहे तो इसका ट्रीटमेंट करो। ट्रीटमेंट एक है पाइलोरोप्लास्टी, 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 या फिर मैंने गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी बताया था, लेकिन पूरे प्रोसीजर का नाम क्या होता है जो रिजेक्शन करते हैं, तो इसका हल क्या है, आप क्या करते हो, सॉरी, एंट्रेक्टमी, एंट्रम को रिमूव करते हो, एंट्रेक्टमी फॉलोड बाय गैस्ट्रोडेडनोस्टमी और गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, राइट। ट्रंकल वेगोटॉमी से एसिड प्रोडक्शन बंद हो गए लेकिन गैस्ट्रिक स्टेसिस हो रही है। अल्टरनेटिव इज द सिलेक्टिव वेगोटॉमी। सिलेक्टिव वेगोटॉमी में क्या करते हैं, सिर्फ वेगल इनपुट कट करते हैं, पैराइटल सेल्स का वेगल इनपुट कट करते हैं और उससे एसिड प्रोडक्शन बंद हो जाती है, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि गैस्ट्रिक स्टेसिस नहीं होती। सो दिस इज़ वेरी गुड। पाइलोरोप्लास्टी में क्या करते हैं, पाइलोरिक जो फाइबर्स होते हैं मसल्स के उनको कट करते हैं जिससे पाइलोरस रिलैक्स हो जाए, और पाइलोरस के अंदर जो स्टेसिस हो रही थी पाइलोरस के अंदर, वो अब स्टेसिस ना हो, वो जगह खुल जाए और ईजिली वहाँ से जो फूड कंटेंट है वो नीचे चला जाए। बाकी ये थोड़ा मामला है एंट्रेक्टमी का, बताता हूँ। अगर आपने ट्रंकल वेगोटॉमी किए तो उसके बाद एंट्रेक्टमी कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से है बेटा, ये थर्ड वन बता रहा हूँ मैं आपको, दिस थिंग, ट्रंकल वेगोटॉमी प्लस एंट्रेक्टमी कर सकते हो, क्योंकि ट्रंकल वेगोटॉमी का प्रॉब्लम स्टेसिस है। इसमें क्या करते हो बच्चों कि अगर आपका ये गुड लुकिंग, यू हैव दिस वन, ईसोफेगस डाउन द वे स्टमक, ईसोफेगस एंड वी गो हेयर, सुपर्ब। एक अच्छा करना हमने इस एंट्रम को रिमूव है, इस एंट्रम को करना है हमने रिमूव। चलो जी, अब एंट्रम को कर दिया हमने रिमूव। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है एंट्रम को रिमूव करने के बाद, या तो इन दोनों को कर दो स्टम्प और कर दो गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, या दूसरा ये गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी यानी कि बिलरथ 2 कर दो, बिलरथ 2 कर दो, बिलरथ 2, या फिर गैस्ट्रोडेडनोस्टमी भी कर सकते हो कि अगर आपने ये रिमूव किया एंट्रम और उसके बाद ये आपका डॉर्डनम था, इसको जेजुनम के साथ लूप बनाने के बजाय इसी को गैस्ट्रोडेडनोस्टमी कर दो, ठीक है। एंट्रम भी रिमूव हो गया, गैस्ट्रोडेडनोस्टमी करके एनास्टोमोसिस भी कर ली। सो आई होप यू आर नाउ क्लियर विद ऑल द प्रोसीजर्स एंड आई होप दिस विल हेल्प you guys, and I have given all my efforts into this. Hope this will be clear for you. Now I'll be coming up with the complications of the peptic ulcer surgery, right? Okay.